morning, class 6. How are you? I think everybody is fine and safe at home. So, whatever instructions are given to you, I think you are following all the instructions. Again, I am repeating, girls. Every time you are asking in the comment box, ma'am, how to write the fundamentals and how to write the question answer. But, girls, fundamentals of computer or notes I have given you, that you have to write separately. Okay, that should be only the fundamentals of computer. There is definition of computer, characteristics of computer, generations of computer, components of computer, types of computer. This will be in one. And when I'm giving you the question answer, that will be in the separate page, fresh new page, where you will write the chapter 1, then the heading, that is chapter name, okay, and then you will start writing the question answer. Okay, so this will be the process. The interleaf page will be blank. There will be nothing. You have to not draw anything, you have to not color anything. Whatever notes I have given, that only you write. Okay. When you open the copy, there is an index box. Okay, that index box, there is an index page, not box, there is an index page. In that index page, you have to write the headings of the chapter what you are writing. Like, first you have written the fundamentals of computer, so with the date you have to write the fundamentals of computer. Then next, when you have started the chapter, then chapter name, date and chapter name. This will, we have to fill the index every time when you are starting the new thing. Clear? Should be, the index should also be complete, and the work what I am giving you, that also should be complete in that. समझ में आ रहा है कि आपको इंडेक्स में भी वही लिखना है. इंडेक्स में क्या लिखना है जो आप लिख रहे हैं. जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर लिखे तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर उस इंडेक्स में आना चाहिए. देन अगेन आप जब चैप्टर लिख रहे हैं तो चैप्टर का नाम आना चाहिए डेट के साथ. तो इंडेक्स में ये कंप्लीट होना चाहिए, और वर्क भी आपका कंप्लीट होना चाहिए. इंटरलीफ पेज में, तो ब्लैंक पेज में कुछ करना नहीं है, ना फोटो चिपकाना है, ना फोटो ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना है. आपको जितना नोट्स दिया गया है, आप उस हिसाब से आप नोट्स लिखिए. ड्रॉ, मैंने एक ही फिगर ड्रॉ किया है, उसको आप इंटरलीफ मतलब ब्लैंक शीट में ड्रॉ कर सकते हैं. एक ही मैंने ड्राइंग दिया है, तो उसको आप इंटरलीफ पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ब्लैंक शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल से, पेन से नहीं. पेन से लिखना भी नहीं है, पेन से कलर भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. पेंसिल से सिंपली उसको ड्रॉ करके पेंसिल से ही मार्क कर देना है. ठीक है, उसमें कोई भी कलर यूज नहीं करना है. So come back to our chapter. I have already started the second chapter. I have completed your first chapter. Now I am starting with your second chapter. I have told you about the files, the folders, the file management, all these things I have told. I told how to transfer. Last video I have shown you how to transfer the files from one disk to another disk. I have shown you how to transfer the pen drives and CDs. Now this is the pen drive. Okay, I have seen this pen drive. Sorry, this is the pen drive. You've seen the pen drive. Now, pen drive is used to store the informations. Okay, this can be any, the capacity of this can be divided, like some are coming from 2 GB, then 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB. Okay, these are the capacity of a pen drive. Okay, and CD. This is the CD. Okay, this is the CD where we store the information. This is also used for storing the information. These are the external storage devices. Okay, internal storage device, we are having RAM and ROM, but internal external, that are internal storage device. External storage device, this is the external storage device. This is pen drive and this is CD. Now, dongle, this is the dongle. Okay, it is just like pen drive. This is just like pen drive, but it uses SIM. Okay, ये SIM use करता है. Sorry, ये SIM use करता है. See here we can see a SIM is inserted in it. Okay, ये डोंगल इंटरनेट के यूज में आता है, इसमें कोई हम स्टोरेज यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, ये इंटरनेट जो हम पहले जब मॉडेम्स यूज होते थे, अब मॉडेम्स नहीं, अब यही यूज होते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए. आप इसमें सिम डालिए एंड यू कैन यूज इट. सो इट इज जस्ट लाइक पेन ड्राइव, बट इट इज नॉट अ पेन ड्राइव. दिस इज द पेन ड्राइव विच वी यूज. ये पेन ड्राइव है जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं.
ठीक है। इसमें कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, इसको लेते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप में होता है होल्डर इसमें डालने के लिए, उसको डालते हैं। देन वॉट एवर फाइल्स एंड फोल्डर्स वी वांट टू स्टोर इन दैट, वो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को, एक पॉपअप लिस्ट आता है, उस लिस्ट में आता है इसका रिमूवेबल डिस्क करके कुछ आता है एक ऑप्शन, ओके। तो उसमें जाके ये उसको क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल हम सेव करना चाहते हैं इसमें जाके ये सेव हो जाता है। सीडी में क्या है, सीडी टू टाइप्स में होता है, रिपिंग एंड बर्निंग, ओके। रिपिंग मीन्स कॉपिंग द फाइल फ्रॉम सीडी टू कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड रिपिंग, एंड बर्निंग मीन्स कॉपिंग द फाइल फ्रॉम कंप्यूटर टू सीडी इज कॉल्ड बर्निंग, ओके। फिर से सुन लीजिए, रिपिंग मीन्स कॉपिंग द फाइल फ्रॉम CD to computer and burning means copying the file from computer to CD. Okay, clear? Ripping and burning. Burning के लिए एक न्यूरो सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसके द्वारा हम प्रोसेस को बर्न करते हैं, मतलब वो फाइल को सेव करते हैं फ्रॉम कंप्यूटर टू सीडी। ये एक सॉफ्टवेयर यूज होता है न्यूरो सॉफ्टवेयर, ओके। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जब उसको हम ओपन करते हैं, उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, फिर हम उसमें फाइल सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा फाइल हमको सीडी में सेव करना है। फिर उस सिलेक्टेड को हम प्रोसेस में लाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप वो बोलता है अब वांट यू बर्न दिस सॉफ्टवेयर, मीन्स आप कॉपी करना चाहते हैं। देन यू क्लिक टू द बर्न ऑप्शन, देन इट स्टार्ट कॉपिंग द फाइल फ्रॉम कंप्यूटर टू सीडी, तब वो स्टार्ट हो जाता है कॉपी करने के लिए सीडी, कंप्यूटर से सीडी में। जब ये हो जाता है तो जो सीडी ड्राइव है वो अपने आप ओपन हो जाता है, मतलब हम लोग पहले से उसमें सीडी डाल के रखते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है, कॉपिंग कंप्लीट हो जाता है, तो वो सीडी ड्राइव अपने आप ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली, एंड देन अ मैसेज अपीयर्स इन द स्क्रीन दैट दिस हैज बीन सक्सेसफुली डन, मतलब आपका जो कॉपी का प्रोसेस हो रहा था वो हो चुका है। नाउ if you want to check then you again insert the CD and check the whether your documents has been saved in the CD or not, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये दो क्या है हमारा, ये दोनों एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जहां हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, और इसको कहीं भी, मतलब कि इससे हम कहीं से भी और भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लाइक दिस वी ट्रांसफर द डेटा, like this we transfer the data from hard drive to CD, okay। टू प्रोसेस से होता है, एक रिपिंग से होता है, बर्निंग से होता है। रिपिंग से क्या होता है, रिपिंग से हम सीडी से कंप्यूटर में सेव करते हैं इंफॉर्मेशन, जो भी सीडी में इंफॉर्मेशन उसको हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। और बर्निंग में क्या है, जो भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है अगर हम उसको एक्सटर्नल में सीडी में स्टोर करना चाहें तो उसके बर्निंग से करते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क भी दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। एक तो ऑलरेडी आपके लैपटॉप्स में होते हैं, अगर नहीं है और यदि काम नहीं कर रहा है तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो हार्ड डिस्क भी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल होते हैं जो ऑलरेडी कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं, और एक एक्सटर्नल होते हैं जिसको हम केबल डेटा केबल के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग विथ मल्टीपल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको बता चुके हैं, व्हाट इज एप्लीकेशन, हम आपको एप्लीकेशन बता चुके हैं कि एप्लीकेशन क्या है, द एप्स विच वी आर यूजिंग टू वर्क, टू डू द वर्क, ओके। वो ऐप जिससे हम काम करते हैं, जैसे MS वर्ड हुआ, पेंट हुआ, तो वैसे ही इसमें भी कंप्यूटर में हम एक साथ कई एप्लीकेशन के साथ काम कर सकते हैं। हम पेंट कर सकते हैं, हम गाना सुन सकते हैं, आप विंडो मीडिया प्लेयर जानते हैं, उससे क्या करते हैं, हम मूवी देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, है ना। तो इस मल्टीटास्किंग एरिया हो जाता है ये, कि हम कोई भी काम एक साथ कर सकते हैं। हम पेंट भी कर रहे हैं, हम गाना भी सुन रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट भी टाइप कर रहे हैं,
तो इसको कहते हैं वर्किंग विद मल्टीपल एप्लीकेशंस, एक साथ कई तरह के एप्लीकेशन से काम करना, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, हम एक साथ जब कई तरह के एप्लीकेशन के साथ काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग विद एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन. दैट मे बी विंडो मीडिया प्लेयर, that may be paint, that may be MS Word, कुछ भी, ठीक है, कोई भी. समझ में आया? नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग विद वाइल्ड कार्ड. वाइल्ड कार्ड अब बहुत कॉमन है, जैसे आपने सुना होगा जो प्रोग्राम्स आते हैं, जो सिंगिंग वाले प्रोग्राम्स आते हैं या डांस वाले प्रोग्राम है, रियलिटिक प्रोग्राम्स जो आते हैं, उसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, मतलब जो एक बार निकल जाता है तो उसको एक चांस और मिलता है. तो वैसे ही यहाँ पे भी एक दो ऐसे सिंबल्स हैं जो किसी चीज को सर्च करने के लिए यूज होता है. ठीक है, तो ये दो हैं. वाइल्ड कार्ड दो तरह के हैं, एक है क्वेश्चन मार्क और दूसरा है एस्ट्रिक. ओके, एक है क्वेश्चन मार्क और दूसरा है एस्ट्रिक. जो एस्ट्रिक है, जो क्वेश्चन मार्क है, वो सिंगल फाइल को सिलेक्ट सर्च करने के लिए यूज होता है, और जो एस्ट्रिक है वो मल्टीपल फाइल्स को सर्च करने के लिए यूज होता है. ठीक है, सिंगल कैरेक्टर, अगर कोई एक फाइल, पर्टिकुलर फाइल को हम सर्च कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क देके, पर्टिकुलर फाइल का नाम देके, पर्टिकुलर फाइल का एक्सटेंशन देके हम उसको सर्च कर सकते हैं. और जब हम एस्ट्रिक देते हैं तो एस्ट्रिक से मल्टीपल फाइल्स का सर्च करके हमारे पास आ जाता है, जो भी फाइल हमको चाहिए वो सारे फाइल एक साथ सर्च होके आ जाता है. लेकिन क्वेश्चन मार्क देंगे तो एक ही फाइल सर्च होके आएगा. ओके, तो इसका डेफिनेशन भी यही है कि asterisk is used to represent number of characters or an empty string and is basically used to search the files with same extension. Extension हम बाद में बताएंगे कि what is extension. Whereas question mark is used to search single file. A question mark represents single character to separate a file name. Okay, single character, single alphabet. Okay, जैसे A हुआ या B हुआ, सिंगल अल्फाबेट. और ये क्या है, ये मल्टीपल है. ठीक है, तो टुडे टिल हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एंड लिसन केयरफुली दिस वीडियो, वेरी केयरफुली व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे. ओके, so whatever doubt should be there, please you are free to comment on the comment box. Okay, so please go through this video for today. Thank you. Stay home, stay safe.